So, kids, the chapter's name is LPP, that is Linear Programming Problem. In class 11, we had a chapter known as Linear Inequations or Linear Inequalities. उसका extension है. Is it okay? Yes, sir. तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझेगा चैप्टर में है क्या. It's like initially it's like a revision of linear inequalities. Now, suppose if I give you 3x plus 2y equal to 6. Can you draw this line? Yes, sir. Of course, ये equal है. I can draw a line. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Equal है तो gives you a line. But what if suppose I have less than, yeah, less than or equal to, greater than, yeah, greater than equal. This is known as inequalities. Do you agree? Yes, sir. Yeah. So suppose if I give you a question here, draw the graph of 3x plus 2y less than or equal to 6. Now kids, मैंने आपको सिखाया था, आपको वापस बता देता हूं मैं. This will give you a region. Do you agree? Yes, sir. So how do you draw this guy? First of all, you take a line 3x plus 2y equal to 6 and start plotting 2 points. Take x0, you get y. Take y to x0, you get y. Y will be 3. Take y, you get x. X will be 2. Now I can join this guy. So if I join this guy, I'll get a line. Do you agree, kids? Yes, sir. Yes, sir. I got a line. Now once this is done, now this line divides the graph in two parts. One is the upper part, other is the lower part. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. The lower part is known as the origin side and the upper part is known as the non-origin side. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Now if you want to decide which part this graph lies, then randomly take any point on either side. Let me take the origin. So if I put 0, in the question only, I get 0 less than equal to 6. Is it true? Yes, sir. So 0, 0 satisfied it. And since 0, 0 satisfied it, that's why the graph of this region is which side? The origin side. Do you understand? Yes, sir. तो आपका ग्राफ ओरिजिन साइड पे हो गया. इज इट क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता, अगर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल होता तो ग्राफ कहाँ आता? चलो बताओ. Non-origin side. नॉन ओरिजिन. तो मैंने आपको सिखाया था लेस देन तो ओरिजिन साइड, ग्रेटर देन तो नॉन ओरिजिन साइड. डू यू एग्री? Yes, sir. Now once this is done, now what if suppose I ask you a question? Now if I say this is the question and I'm adding one more constraint, x non-negative and y non-negative. This is my new question now, a new constraint I'm putting. So if I put this new constraint, then where will the answer be? Where will the graph be? Triangle The with triangle in height first 3 quadrant. and It has to be the first quadrant. Do you agree? yes, sir. Yeah, because x per non-negative, y non-negative represent which quadrant? For फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो नॉर्मली लेस देन है तो ओरिजिन साइड ही होगा, लेकिन अभी यहां पर सिर्फ आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा. डू यू एग्री? yes, sir. ओके. नाउ आगे. नाउ इफ सपोज क्वेश्चन अगर यहां होता दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वो टाइम पे ग्राफ ऊपर की तरफ आ जाता. डू यू एग्री? Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इज इट ओके? Yes, sir. तो आपका ग्राफ फिर ऐसे हो जाता. इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छी बात है. इतना होने के बाद और कैसे क्वेश्चंस आते थे, हमने 11th में करते थे, वो भी देख लेते हैं. नाउ लेट मी इंक्रीज माय नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स. नाउ सपोज द क्वेश्चन इज 3x plus 2y less than or equal to 6, 2x plus 3y less than or equal to 6. फिर क्या होगा? और ये भी कंस्टेंट है. x, so वापस से x is 0 तो y will be 2 Yes, sir. and y is 0 then x will be 3. So again I'll draw a line. I get something like this. Is it true? Yes, sir. अब क्या होता है किड्स? ये भी ओरिजिन साइड है तो अंदर की तरफ आएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. सिमिलरली वो भी ओरिजिन साइड है तो अंदर की तरफ आएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. Which is the common part?
2,2 का भी। तो ये कॉमन पार्ट हो गया हाँ कि नहीं? Yes, sir. दिस कॉमन पार्ट इज नोन एज योर फिजिबल रीजन. डू यू एग्री? Yes, sir. इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं. इट इज नोन एज व्हाट? फिजिबल रीजन. इज इट ओके? Yes. सिमिलरली अगर यहां पर दोनों ग्रेटर देन होता तो पता है पब्लिक आंसर कहां आता? 3,3 के आगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता लेकिन वो ऊपर की तरफ आता और ये क्या होता? इनडेफिनेटली ऊपर की तरफ रहता. हाँ कि नहीं? Yes, sir. आर यू गेटिंग मी किड्स? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अगर थोड़ा और चेंजेस मैं करता हूं, अगर सपोज एक होता लेस देन, एक होता ग्रेटर देन, तो वो टाइम पे बताओ क्या होता? Point of interest. तो वो कहां आता? तो ना यू नो व्हाट वुड हैव हैपेंड? 3 लेस देन, तो यहां ये लेस देन हो जाता, ये ग्रेटर देन हो जाता, तो कैन आई से दिस पार्ट वुड बिकम द आंसर? Yes, sir. सिमिलरली अगर ऑल वाइस वर्सा होता तो फिर ये वाला पार्ट आ जाता. इज इट ओके? Yes, sir. तो बस पहले तो आपको ये सब पता होना चाहिए. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. Now I'll go ahead. Now I'll tell you what. Now this was your 11th part. Now I'll tell you what type of questions come. सुनो, क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है. मैक्सिमाइज, एक मिनट. ओके, मैक्सिमाइज z equal to, suppose if I tell you x plus 2y subject to, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, subject to 3x plus 2y less than equal to 6, 2x plus 3y less than equal to 6, x non-negative and y non-negative. तो क्या करना है? हमने जैसे किया था वैसे ही करना है. पहले तो आपको एक, हाँ अब इसमें बता दो क्या है, क्या क्वेश्चन क्या पूछा आपको. शायद इंग्लिश आता है तो आपको समझ गया होगा इंग्लिश में क्या लिखा है. लिखा है मैक्सिमाइज दिस. नाउ सी, मैक्सिमाइज दिस का मतलब होता है आपको इसको z को मैक्सिमाइज करना है. हाँ कि नहीं? Yes, sir. z को मैक्सिमाइज करना है तो आपको x और y का एप्रोप्रिएट वैल्यू चाहिए. नाउ एंड दीज आर द कंस्ट्रेंट्स. डू यू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रेंट्स? Yes, sir. तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ये आपका ऑब्जेक्टिव है, z को मैक्सिमाइज करना, और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन. मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. सपोज अगर आप सपोज भाजी बेचते हो. सपोज लॉकडाउन में काम धंधा नहीं है आपके पास, घर पे बैठे हो, तो आपने डिसाइड किया चलो मैं भाजी बेचता हूँ, सब्जी बेचता हूँ. सब्जी वालों ने बहुत कमाया, बहुत जोरदार कमाया. मैं भी सोचा था भाजी बेचता हूँ मैं. ओके, सो सब्जी वाले जो होते हैं, सपोज जो जब धंधा करने बैठा है किड्स, तो डोंट यू थिंक व्हाट हिज एम इज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट? डू यू एग्री? Yes, sir. लेकिन आप तो खरीदार हो, आप तो कस्टमर हो. तो आप कस्टमर हो, आपका एम क्या होता है? मिनिमाइज द कॉस्ट. डू यू एग्री? Yes, sir. लेकिन आपके पास कंस्ट्रेंट है. सपोज आपकी मम्मी ने बोला है आपको कि बच्चा तेरे को 2 किलो आलू लाना है, 3 किलो बटाटा लाना है, और एक कंस्ट्रेंट दिया है कि इतना ही लाना है. लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई मूवी बनानी है और आपको किसी ने दिया है चलो अब योर बजट इज 50 करोड़ रुपीस का बजट, 50 करोड़ में मूवी बनाओ. So you have a limitation. You cannot afford to have, actors like whatever Akshay Kumar or Rajnikant in your movie because they are very costly actors. तो आपको कोई हल्का फुल्का मीडियम एक्टर लेना पड़ेगा जो 10 करोड़ में चल जाए, 5 करोड़ में चल जाए. हाँ क्या नहीं किड्स? Yes, sir. तो बजट है, तो यहाँ पर भी ये बजट है, यहाँ लिमिटेशन है. डू यू सी द लिमिटेशन? Yes, sir. ये आपका ऑब्जेक्टिव है. सो हाउ डू solve such problems? Simple. First, you draw this line, this inequation. So basically, this is 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. So ये हो गया आपका x0 तो y3, y0 तो x2. Is it okay? और ये आपका लाइन हो गया. Is it okay, kids? Yes, sir. Similarly, x0 तो y2. And y0 to x3. And again, I can draw the line. Is it clear? Yes, sir.
अब ऑफ कोर्स दोनों लेस देन है तो आंसर कहां पर आएगा? नीचे अंदर की तरफ आएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. ओके, तो ये आपका हो गया फिजिबल रीजन. इज इट ओके? Yes, sir. बाय द वे, इट इज आल्सो नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. इज इट ओके? Yes, sir. ओके. अब उसको मैक्सिमाइज कैसे करते हैं? नाउ देयर इज अ थ्योरम नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थ्योरम. देयर इज a theorem which is known as convex polygon theorem. What does this theorem say? That theorem says that the maximum or the minimum value of the z, maximum or minimum value of the objective function always lies, maximum or minimum value of objective function always lies at the vertices of the polygon. Always lies where? At the Vertices of polygon. तो आपका vertex is 0 0, here the vertex is 2 0, here the vertex is 0 2, here the vertex is something else. For can I get this point? Solve simultaneously. So I'm just taking randomly, yeah, so don't unnecessarily argue with me, okay? Some randomly I'm taking some point. Okay, some point I've taken. Okay, now I have got this 4 point. Now what you have to do? Substitute in z. That's it. So finally, answer is, let me call this as O, let me call this as A, B and C. So I'll find z at O, then I'll find z at A, I'll find z at B, and then I'll find z at C. Let's go ahead. Let's substitute. Z at O, क्या करने का? X में 0 put करने का, Y में 0 put करने का. What is the answer? 0. Z at A, तो X में 2 put करने का, Y में 0 put करने का. Is it okay? What is the answer? 2. Next, Z at B, B क्या है? 1 1. X में 1 put करने का, Y में 1 put करने का. What is the 3. answer? Next, X में 0 put करने का आपका और Y में 2 put करने का. What is the answer? 4. Which is maximum? 4. So Z is maximum at point C, where X is 0 and Y is 2. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So Z max will be how much? 4. 4. Is it clear? Yes, sir. सबको समझा क्या? Yes, sir. Okay, so this kind of question will come. So यहाँ पर maximize है. Now for the same problem they will never ask minimize. हाँ, यहाँ पर minimize नहीं पूछेंगे. क्यों नहीं पूछेंगे पता है? अगर यहाँ मिनिमाइज पूछा ना तो आपका आंसर बाय डिफॉल्ट क्या आने वाला है? 0,0. 0 ही आने वाला है. सो जब ऐसा क्लोज इंटरवल होगा ना, ऐसा क्लोज होगा, जब क्लोज पॉलीगॉन होगा ना, वो टाइम पे कभी भी मैक्सिमाइज नहीं होगा, सॉरी कभी भी मिनिमाइज नहीं होगा, मैक्सिमाइज ही होगा. इज इट ओके? Yes, sir. समथिंग मोर टू टेल यू किड्स? Next, I'll give some more example so that you understand. Similarly, an examiner can ask you a question like this: minimize some z equal to something will be given to you, some constraints will be given to you, subject to, subject to, subject to, and then again you do the same drama. Okay, and then यहाँ पर suppose greater than है, suppose ये greater than equal to है, तो वो टाइम पे क्या होगा? आपका ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा. Do you agree? Do you agree? Where are the people? Yes, yes. At that time, you will have 3 points. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. और पॉइंट नहीं आएगा, ये 3 पॉइंट ही आएगा. आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के हिसाब से क्या होता है कि ये ऐसा एनक्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, लेकिन जो आपका जो एजेस है ना, शार्प एजेस, जहां पर एजेस है, वही आपको पॉइंट सिलेक्ट करना है. आपका पॉलीगॉन के वर्टेक्स होते हैं. इज इट ओके? तो आपको Yes, क्या sir. करना है? ये सब पॉइंट्स को z में पुट करने का, ठीक है, और फिर Yes. z मिनिमम फाइंड करने का. इज इट ओके? Yes. यहाँ पर कभी भी z मैक्स नहीं, यहाँ पर कभी मैक्सिमाइज नहीं पूछेंगे. यहाँ पर मैक्सिमाइज क्यों नहीं पूछेंगे? Infinity हो जाएगा. इन्फिनिटी हो जाएगा. तो अगर मैक्सिमाइज पूछ भी लिया तो यू शुड से LPP हैज indefinitely वेरी बिग सोल्यूशन. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. तो ऐसा होता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Similarly, in short, इसका मतलब क्या है? They can ask you problem which is based on maximize, which is based on minimize. यहाँ पर 2 कंस्टेंट है तो 3 कंस्टेंट आ सकता है, 4 कंस्टेंट आ सकता है, कितना भी कंस्टेंट आ सकता है. आपको अपने हिसाब से उसको सॉल्व करना है. Is it okay? Yes, sir. It might happen. You might have like this, some line like this, some line like this, some line like this. God knows, and then you end up having a graph like this. At that time, you'll have to these 4 points will be the points.
and this 4 points should put in Z and get the appropriate answer of Z. Is it okay? Maximize sir. हो या minimize हो? Do you understand this? Yes, sir. ओके तो हमें ये सब पता होना चाहिए, ठीक है. किस कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, क्या बताता हूँ. It might happen there will be some line, you know, one line will be like this, other will be like this. Okay, और यहाँ पर है ना ये लेस देन होगा सपोज और ये ग्रेटर देन होगा. वो टाइम पे डू वी हैव एनी कॉमन रीजन? No. Since no common region, therefore no solution. Do you agree? Yes. तो ऐसे भी हो सकता है. Do you understand? Yes. आगे बात करता हूं. कभी कभी ऐसे हो सकता है. I'll tell you all types, okay, so that you know how to solve these problems. Okay, suppose आपका आंसर यहां पर कहीं पर है. ये सपोज आपका O है, ये आपका सपोज A है, ये आपका B है और ये आपका C है. ठीक है. मैं ना थोड़ा बड़ा बनाता हूँ यार, थोड़ा छोटा दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है ना. ओके, तो सपोज यू नो किड्स आपके पास ये आपका रीजन मिल गया. फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉइंट A, पॉइंट B, and this is your point C. Now what is suppose, and the question is maximize. So suppose you find Z at O, Z at A, Z at B and Z at क्या हुआ अब्बास? What happened अब्बास? Nothing, sir. Okay, ठीक है. Okay, so suppose after solving problem you get the answer. Suppose यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर you are getting suppose 13, यहाँ पर you're getting 15 and here also you're getting 15. So can I say maximum is how many points? 2 points. दो जगह पे है ना मैक्सिमम किड्स. Yes, sir. तो एग्जाम में क्या करना है कि सुनो, नॉर्मली एक ही जगह पे आएगा, लेकिन अगर दो जगह पे आया, सपोज मैं आपको करके बता रहा हूं, सपोज दो जगह पे आया, सपोज यहां भी आया और यहां भी आया, तो आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है. अगर यहां पर भी आंसर 15 आ रहा है और अगर यहां पे आंसर 15 आया, तो ट्रस्ट मी किड्स, फ्रॉम हियर टू हियर एवरीवेयर द आंसर विल बी व्हाट, यू नो किड्स, 15 ओनली. तो एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, आपको इसको हाईलाइट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा सेगमेंट बी इज द सॉल्यूशन, और फिर बोलना पड़ेगा अ सेगमेंट हैज हाउ मेनी पॉइंट, हैज Infinite point. infinite points, therefore it has how many solutions? Infinite solution. Therefore it has infinite Maximum solutions, no? solutions. Do you agree? Yes, sir. तो कभी भी अगर दो जगह पे, और हमेशा कंसेक्यूटिव में आएगा, अगर आएगा तो कंसेक्यूटिव में आएगा, तो उसको ज्वाइन कर देना, हाईलाइट कर देना, बोला सेगमेंट हैज इनफाइनाइट पॉइंट, देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. दैट्स इट. तो इसका आंसर है इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड Z max is 15. Is it clear? Yes. हाँ या आर्यन? Infinite solutions for the maximum value, no? या अरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब x and y ना. Correct. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. हाँ चलो. And the max value of Z will be 15. Yeah. So there are two lines parallel and they have asked the area between the two lines. So how will you find Z and that? क्या बोल रहे हैं? Suppose y lesser than equal to 3 है और y greater than equal to 2 है. अरे मुझे नहीं समझ रहा है, तुझे ठीक से बताना पड़ेगा. Sir, he's telling what if there are two parallel lines, तो area कैसे मिले? दो पैरेलल Lines. ओके. और क्या? उसके बीच का एरिया ये वाला ये तेरा रीजन है, हाँ कि नहीं? पूरा पैरेलल लाइन, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे. ये वाला पार्ट ना? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट. Sir, all quadrants everywhere. अरे दूसरा क्वाड्रेंट आएगा ही नहीं, हम लोग एलपीपी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना. इट विल नेवर बी. लाइन के पैरेलल में जो है ना, वो पूरा सब क्वाड्रेंट में. अरे चैत्य तू यार ठीक से क्लियर यार, तो माइक ठीक नहीं तो क्लियरली बोलेगा तो मेरे को समझेगा. क्लियरली बोल. दो पैरेलल लाइन है, उसका एरिया आपने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लिया है, तो वो एरिया सब क्वाड्रेंट में. क्या? The line is in second quadrant as well as fourth quadrant. Now, so he's saying in the first, second and fourth quadrant, how much area is there between the two lines? ऐसा question पूछ रहा है.
अरे बट एरिया में पूछ रहा हूँ, Z पूछ रहा हूँ। तू तेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा, तू क्लियरली बोल मेरे को, बोलना। दो पैरेलल लाइंस अपने बनाए, हाँ उसके बाद दो लाइन के बीच में जितना भी एरिया होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, जितना भी एरिया होगा उसका Z कैसे फाइंड करेंगे? कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के बात कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट भी, उसके छोड़ के भी सब कुछ। अरे पर एरिया कैसे फाइंड करेगा? एंड व्हाई द हेल आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन हियर? इट हैज नो कनेक्शन हियर। और एरिया कैसे फाइंड करेगा उसका तू? Not area, for Z. We won't have any point, no. ओके तू इसकी बात कर रहा है क्या? ओके एक मिनट रुक, मेरे को अभी थोड़ा शायद समझा तू क्या बोल रहा है मेरे को। तू कुछ ऐसा बोल रहा है क्या? ये बाहर वाला पार्ट, ये ऐसे कुछ बोल रहा है? बाहर वाला भी, अंदर वाला भी। अंदर वाला भी बोल रहा है? हाँ ऐसा बोल रहा है तू? हाँ सर। मेरे भाई चैत्य, पहली बात तो मेरे को समझ नहीं पड़ रहा है, तूने थर्ड और फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ की बात क्यों की? क्वाड्रेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। वी आर डीलिंग विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रे बाबा। यहां पर एक्स और वाई क्या होता है पता है? एक्स और वाई विल नेवर बी नेगेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात। ओके सर। दूसरी बात, अगर तो एक्स और वाई फिर भी लेता है, चल ऐसा होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यूज है। अरे एक्स इज द ग्राम, एक्स represents the quantities of gold, y represents quantities of silver. How can the quantity be negative? Do you understand? Okay, so we don't take graph, we just take practical value. हाँ प्रैक्टिकल वैल्यूज ही पूछेंगे, कुछ ऐसे नहीं पूछे। फिर भी अगर पूछा फिर भी ना, तो यहां से तेरे को कभी z मिलेगा ही नहीं। That's what I was asking. या इज इट क्लियर? Yes. z मिलने के लिए आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? Yes. अदरवाइज यू विल नेवर गेट। इज इट ओके? Yes. या चलो ओके किड्स, तो ये मैंने बता दिया। फाइनली बस और एक चीज मुझे बतानी है, वो है कभी कभी किड्स ऐसे होगा कि आपको कोई लाइन दिया है x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सपोज x लेस देन इक्वल टू 3, x नॉन नेगेटिव एंड y नॉन नेगेटिव। अगर आपको ड्रॉ करें तो आप ड्रॉ करें। देखो पहली बात, x लेस देन 3 को ड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत आसान है ना किड्स? Yes, sir. अगर मैंने x लेस देन 3 बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। डू यू एग्री? Yes, sir. चलेगा ना? हाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ड्रॉ करना है। देखो ये ड्रॉ करने के लिए ना, आप इक्वल टू हटा दोगे तो आपको मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो व्हाट इज x इक्वल टू y? डू यू एग्री? Yes, sir. तो this is the line which passes through origin and it makes an angle of 45 degree. Do you agree? Yes, sir. पक्का ना? हाँ Yes, sir. ओके अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है, हाँ कि नहीं किड्स? तो हम क्या करेंगे, हम उसके आजू बाजू में कोई भी एक रैंडम पॉइंट कलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स टेक सम पॉइंट एज 2,1. कैन टेक 2,1? Yes, sir. नाउ put x as 2, put y as 1. Is it true? Yes, sir. तो does this 2,1 lie on the region? yes Yes, sir. Automatically this part will be the graph of x minus y greater than or equal to 0. Do you agree? Yes, sir. Now which is the common part? है ना, this part becomes the common part, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. बस तो आपको ये भी ड्रॉ करने को आना चाहिए कि अगर लाइन आपका, अगर आपका लाइन जो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको पता होना चाहिए, रैंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लो और पुट करके चेक कर लो। इज इट ओके? Yes, sir. बस फिर यही था आपको ग्राफ, यही सब एग्जाम में आते रहते हैं। तो अभी मैं आगे शायद और टाइम पास नहीं करने वाला, मैं आपको रैंडमली एग्जांपल बता देता हूँ। ये सारे एग्जांपल देखो ग्राफिकली प्लॉट करने। हाँ क्या प्रणा? सर पिछले सम में हाँ। वो द एक्स्ट्रा पॉइंट व्हिच यू टेक द फोर्थ पॉइंट, it has to be compulsory on the graph or it can be on the other lines also. अदर लाइन मतलब क्या? It has to be compulsory on the axis or the other two lines. अरे मेरे भाई इस लाइन के इधर दिस पार्ट और दैट पार्ट, एनी पार्ट इज ओके। No, see, you took the point on the graph on the axis, right? Not on the axis. 2,1 na? How it is on the You took it axis? you took it on the axis, na? The fourth point. Where is the fourth point? Which point you saying? The 2,1 point which you took, the fourth point. Yeah, the 2,1. This. So it is on axis. Yeah, it's on the axis, right? अरे क्या axis यार? कैसा axis? What? Which axis it is?
It's on the x-axis, na, sir? 2 comma 1 is in the x-axis. No. Is 2 comma 1 in x-axis? No, now it's not on the x-axis. I didn't see the green dot which you made on the. Is it okay? Yeah, so it wasn't visible before. Yeah. Is it clear now? Yeah, sir, it's clear, it's clear, it's clear. Okay, so one word less than wala part, I got this, है ना? Yes, sir. Oh, sir, yes, And for, sir, got it. I took 2 comma 1, you take 1 comma 2 on that side. No, I was just asking the fourth point. Why did you take it on the axis? But it wasn't on the axis at all. No, So no, it's. no, no, it was not. I was just trying to get the markings. That's the only thing. 2 comma 1 is Okay, it. sir. Okay, sir. ठीक है ना? Uh, Yeah. so you draw the graphs and then मतलब जो covered part है उसमें you just take one point and put it. Covered part नहीं रे. Any point you can take. तो मेरे को method नहीं समझा सर. 3,1 भी लेके तो वही आएगा ना. 3, ठीक है, मैंने खामखाना है ये इसको ना ठीक से करके बता देता हूँ ना तो ज्यादा बेटर होगा. I drew x equal to y, x equal to 3. Is it okay? Yes sir. Now ये ब्लू लाइन आपके ग्राफ को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? Blue line is dividing into two parts. 2 पार्ट्स. एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट. Yes sir. नीचे वाले पार्ट में कितने पॉइंट्स है? Infinite. ऊपर वाले पार्ट में कितने पॉइंट्स है? Infinite. तो इनफाइनाइट में कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर सकता है तू. Yes sir. सो मैंने यहाँ पर 2 comma 1 लिया, तो यहाँ पर 4 comma 1 ले लेना, तो यहाँ पर 1000 comma 1 ले लेना, Yes, sir. 2000 comma 1 ले लेना, तो you take 4 comma 1 if you don't like 2 comma 1. Is it okay? Yes sir. Now put x as 4, put y as what is 4 minus 1? 3, which is Is 3 greater than 0? Yes sir, satisfying. Satisfy कर रहा है क्या? Yes sir. तो कहना से ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा अभी. Yes sir. पक्का? Yes sir. Okay. After that ये लेस देन है, लेस देन तो ओरिजिन साइड पे होगा, तो ये अंदर की साइड आएगा. Do you agree? Yes sir, correct. So which is the common part? It is overlapping. Okay, okay, understood the method. Yes. अभी समझा? Yes sir, yes sir. चलो ठीक है. Okay. So okay, this become the region and then that's it. और क्या? I hope you clear है kids. हाँ सर. Yes sir. चलो अच्छी बात. ओके किस अभी वही सब है जो मैंने सिखाई है, चीजें सिखाई है ना, वही सब आपको प्लॉट करना है. लेस देन, ग्रेटर देन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सब चीजें वही सब है और कुछ नहीं है. उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम दिया रहेगा, बोलेंगे फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन, जस्ट ड्रॉ द ग्राफ्स एंड चेक द फिजिबल रीजन. हाँ के नहीं? Yes sir. Yes, sir. तो ये सब क्वेश्चंस है. उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है. आपको याद होगा हम लोगों ने एक वर्ड प्रॉब्लम किए थे ना, गोल्ड एंड सिल्वर वाला प्रॉब्लम. डू यू रिमेंबर इन क्लास 11? Yes, sir. बस वो उन्होंने बोला आपको खाली उसको ग्राफिकली उसको प्लॉट करना है और कुछ नहीं. यू कैन ड्रॉ द इक्वेशन, सो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, यू नो. चलो मैं आपको कुछ बता देता हूँ. चलो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ. नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम. सपोज क्या लिखा है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस 2 types of gadgets A and B which are processed in the foundry and hence sent to the machine for finishing. The number of man hours of the labor required in each shop for production A and B and the number of man hours available for the firms are as follows. Now यहाँ पर ये क्या दिया आपको, मैं फाउंड्री को ऑफ कोर्स क्या बोल दूंगा, इसको मैं x बोल दूंगा, इसको y बोल दूंगा, चलेगा? Yes sir. Yes, ओके. sir. तो टाइम अवेलेबल कितना है, तो कहना सॉरी मैं इसको सॉरी इसको x और y बोलूंगा. सॉरी उल्टा. सॉरी. तो गैजेट्स A and B है ना, तो लेट्स से द नंबर ऑफ गैजेट्स A be x and number of gadgets B be y. Is it okay? Yes sir. How much is time available here? 60. So can I say 10x plus, हाँ और एक बात और बिफोर दैट, अब पढ़ो आगे क्या लिखा है, फिर मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा. प्रॉफिट ऑफ द सेल ए एंड सेल ऑफ ए इज 30. तो प्रॉफिट दिया, ए का प्रॉफिट दिया है. ए का प्रॉफिट कितना दिया है? 30 दिया है. बी का प्रॉफिट कितना दिया है? 20 दिया है. हाँ कि नहीं? Yes sir. क्या बोला है? फॉर्मुलेट द एलपीपी प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. फॉर्मुलेट ही करना है, सॉल्व नहीं करना है. मतलब क्या, आपको प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. आई कैन से मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या, इसका मैक्सिमाइज करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करना है, सो 30 into x.
प्लस 20 इंटू वाई चलेगा? Yes, sir. आपको मैक्सिमाइज करना है. सब्जेक्ट टू व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है उसका? 10x plus 6y. How much time is available? Less than equal to 60. Is it okay? Yes. Then 5x plus 4y less than equal to 35 चलेगा? हाँ sir. x कभी नेगेटिव नहीं होगा और y भी कभी नेगेटिव नहीं होगा. Is it okay? Yes. आर्यन शाह तेरे को डाउट है क्या? No, sir. हाँ ठीक है, गुड. तो ऐसे क्वेश्चंस है और खाली फॉर्मुलेट. ये फॉर्मुलेट मतलब ऐसे वैसे फॉर्मुलेट करना है. कभी के दे विल टेल यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, तो वो टाइम पे आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा. तो यहां पर अभी क्या है? फॉर्डर है. क्या लिखा है? In a cattle breeding farm, it is described that the food ration for one animal must contain 14, 22, and 1 units of nutrient A. 12. 14 should be here, 22 should be for nutrient B, and 1 should be for nutrient C. Two different kinds of fodder are available. Each unit of these two contain the following amounts of these nutrients. हमने 11th में कितना ये सब किया है, तो I think कुछ बड़ी बात नहीं है. Now, the cost of fodder 1 is 3 rupees and cost of fodder 2 is 2 rupees. So fodder x और y ले लूंगा मैं. उसका कॉस्ट दिया उन्होंने. अभी इस बार ये वर्टिकल फॉर्म में दिया है, तो कॉस्ट इसका कितना दिया है? 3 रुपया है ना किड्स? और इसका फॉडर 2 का कॉस्ट कितना है? 2 रुपया. आपको मिनिमाइज करना है, तो इसका क्वेश्चन तो कैसा आएगा? मिनिमाइज z इक्वल टू क्या मिनिमाइज करना है? कॉस्ट को. इट विल बी 3x प्लस 2y चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. सब्जेक्ट टू क्या आएगा? 2x प्लस y. कितना क्या लिखा है? मस्ट कंटेन मतलब कम से कम, है ना? Yes, sir. डू अंडरस्टैंड इंग्लिश? Yes, sir. मस्ट कंटेन मतलब क्या होता है? Minimum. कम से कम 14 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 14. डू यू एग्री? Yes, sir. Again, 2x plus 3y greater than equal to 22, x plus y greater than equal to 1, and x non-negative and y non-negative. Is it okay? Yes, sir. तो इसको मैंने formulate कर दिया. Do you understand? Yes, sir. So this is how you formulate the problem. Is it okay? Yes, sir. चलेगा क्या? चलेगा sir. I think एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में उसको शायद उन्होंने रिमूव कर दिया सिलेबस से. मैं चेक कर लूंगा. But I think they have removed it from the syllabus. I think so. Okay, सारे I think word problems उन्होंने हटा दिए हैं. फिर भी पता नहीं मुझे. हाँ, फिर भी आप लोग CET के लिए कर लेना. तो ये वही सब सम्स है, तो खुद से वर्ड प्रॉब्लम करोगे तो आपको समझ जाएगा. हमने ऐसा काफी 11th में सॉल्व किया है बाय द वे. For CET there are no cancellations, ना? कुछ तो CET के बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं है. नो आइडिया. They haven't commented. Okay, fine. सो LPP अभी वही है, ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं आंखें नहीं. सेम वे. Yes, sir. Yes. Okay, so there's nothing great in it. वही सब है जो मैं आपको बता रहा था. वही The हम. graph to be plotted on graph paper, ना? Yeah, they normally give the graph paper. If they don't give the graph paper, you have to plot it on a normal paper only. Okay. Yes. Is it okay? Now one more thing for CET, yeah? For CET. Convex set. For CET, what is a convex set? I give an example so that you understand what is a convex set. सर कोई वीडियो के एंड में आपने किया था ये. पता नहीं मैंने कहाँ किया था. ओके, तो आप ना कॉन्वेक्स सेट का एग्जांपल देखना, ठीक है? मुझे ठीक है, रुको और एक एग्जांपल दे देता हूँ. ये आपके एग्जाम में आता है, सीटी के एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ. ओके, तो मैं इसको ना पूरा फिल कर दूंगा. ओके, इट इज आई एम जस्ट फिलिंग इट अप. ये पूरा फिल कर रहे हैं, हॉलो नहीं है, पूरा फिल कर रहा हूं उसको, सॉलिड को पूरा फिल कर रहा हूं. इट्स लाइक योर डोनट. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ये लोग डोनट खाते, डोनट अच्छा लगता है क्या लोगों को? हाँ सर. हाँ sir. नहीं sir. Yes, sir. डोनट में अच्छा क्या? मैंने कभी डोनट खाया नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं. Sweet लगता है. स्वीट रहता है, उससे क्या होता है फिर? फीलिंग आती है सर. क्या आती? नींद आती है? फीलिंग आती है. फीलिंग आती है. ये भगवान. ओके, ठीक है. तो किड्स, आपके सामने मैंने 5 कॉन्वेक्स 5 सेट लिए हैं. अब मैं बताता हूँ कॉन्वेक्स सेट क्या होता है.
कोई भी सेट होगा, आप कोई भी 2 पॉइंट रैंडमली ले लो, कोई भी 2 पॉइंट रैंडमली ले लो और ज्वाइन करो, कोई भी 2 पॉइंट रैंडमली ले लो और ज्वाइन करो, कहीं भी ले सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट रैंडमली ले लो और ज्वाइन करो, कोई भी 2 पॉइंट रैंडमली ले लो और ज्वाइन करो, कोई भी 2 पॉइंट रैंडमली ले लो और ज्वाइन करो. नाउ if you take any 2 point on a set and join it, and if that part of the segment lies outside the set, then it is not a convex set. Then it is not a convex set. Matlab, who is the convex set? You know, kids, here. This guy is a convex set. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. This guy is a convex set. This guy is a convex set, but this is not a convex set. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So you take any 2 points on the set, join it. If it lies completely inside the set, then it is a convex set. Otherwise, it is not a convex set. I hope I have made my point clear. Yes, sir. Yes, sir. तो ये है ना सीटी में काम आता है, तो मैंने आपको बता दिया. इज इट ओके? Yes, sir. चलो ठीक है किड्स. तो आई थिंक ये चैप्टर हमारा खत्म. सेट के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछते? क्या हुआ? क्वेश्चन कैसे आते कॉन्वेक्स सेट के ऊपर? बस आपको कुछ इक्वेशन देंगे, पैराबोला का इक्वेशन दे देंगे वो लोग, एलिप्स का इक्वेशन दे देंगे, कुछ कर्व्स बना के देंगे, तो आपको ऑप्शन टिक मार्क करना है. विच वन इज अ कॉन्वेक्स सेट? इज इट ओके? हाँ सर. एक मिनट.